start. Page number 106, chapter number 11, Sunita in space. Let's start. Look at the map of your country and tell. You all know about India's map. Have you seen India political map? Okay. So you have to see map of India, map of our country, and you have to tell these questions. Can you find the state in which you live? Write its name on the map. जो आप मैप लेते हो उसमें आप कहाँ पे रहते हो? You are living in Gujarat, so you have to write Gujarat on the map. Can you hear me, Heli? Heli? Yes, sir. Both of you, am I audible? Yes. Okay, fine. Which are the states next to the state you live in? आप जिस स्टेट में रहते हो उसके बाजू में कौन सा स्टेट आया हुआ है? Okay. So you have to write the name of the states which are next to our state. Rajasthan is there. Okay. On the other side you will see the Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, Rajasthan. Okay, right. Next, have you been to any other state? क्या आप दूसरे कोई स्टेट में गए हो? If yes, then you write yes. If no, then you write no. Next Yes. question. Shamir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? क्या एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट जाते हैं तो क्या ऐसे लाइन ड्रॉ की होती है कि यहाँ से गुजरात खत्म हो रहा है तो यहाँ से राजस्थान खत्म हो रहा है, यहाँ से मध्य प्रदेश खत्म हो रहा है, तो एक्चुअली क्या वहाँ पे ऐसी लाइन बनी होती है? No, there are no such lines. There are no such lines. ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ठीक है? जस्ट वहाँ से मतलब वहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड होता है कि वहाँ से गुजरात खत्म हो गया और नेक्स्ट स्टेट चालू हो गया, पर सच में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है. When Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता विलियम ने स्पेस से अर्थ को देखा तो अर्थ कैसा दिखा था? ब्यूटीफुल. इट वॉज ब्यूटीफुल. ऑन द वीडियो, बोथ ऑफ यू ऑन द वीडियो. Heli, on the video. Mansi, mute yourself. Okay. So when Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. जब सुनीता विलियम ने स्पेस से देखा, स्पेसशिप पे से, तो अर्थ कैसा दिखा था? ब्यूटीफुल. Many thoughts came to her mind. अलग अलग उसके दिमाग में विचार आए. As she described it, from so far away, one can only make out the land and sea. One cannot see the different countries. Division into the countries have been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our mind. I wish we all think that this we are. Where are the lines really? Okay, तो जब सुनीता ने अर्थ को देखा स्पेस से तो अर्थ कैसा दिखा था? ब्यूटीफुल दिखा था. एंड वहां से मतलब यू नो सी ब्लू पार्ट, मोस्टली ब्लू पार्ट दिखा था. Why? Because the earth is covered with the water. Most part of the earth is covered with the water. That's why one can see blue, major part blue from the space. Okay.
पर आपको दूसरी कोई लाइन नहीं दिखेगी वहां से कि इंडिया की लाइन, इंडिया की बाउंड्री, ओके, पाकिस्तान की बाउंड्री, गुजरात की बाउंड्री, ये सब कोई आपको बाउंड्री दिखेगी नहीं। लुक एट द स्काई। Shahmid, he closed one eyes and moved the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. Uzaira, wow, imagine hiding such a big moon behind the such coins, such small coin. Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eyes did you keep the coin to hide the moon? अब आपने भी ऐसा किया होगा कि जब मून आपको दिखता है स्काई में, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मून को छुपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सामने भी ऐसा कर रहा है कुछ। वो क्या कर रहा है, छोटा सा कॉइन लेता है, ओके, 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन इज टेकिंग, और उस कॉइन को एक आंख बंद करके वो मून को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है, और फिर उस मून को छुपाने की कोशिश करता है, और फिर क्या कहता है कि देखो मैंने पूरे मून को कवर कर लिया, इतने बड़े मून को कवर कर लिया। तो एक्चुअली में जितना कॉइन है उतना मून है नहीं, ओके। हम ये नहीं कह सकते कि कॉइन जितना ही मून है, क्योंकि कॉइन की साइज में वो मून फिट हो गया, कॉइन की साइज में वो मून फिट हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि कॉइन की साइज जितना ही मून है, ओके। थिंक, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? आपको क्या लगता है कि मून कॉइन के जैसा फ्लैट है कि इट्स लाइक ए राउंड लाइक अ बॉल? आंसर मी। The moon is like a flat coin or it's round in shape? Answer me beta. It's round shape. Very nice. It's round in Sir, shape. Or round like a ball, not like a flat coin. Okay. Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling star look magical? रात को आपने देखा होगा कि आपको स्टार्स ऐसे ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगे हो, ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अब सो above or so high like a diamond in the sky। पोएम आपने पढ़ी होगी। At some time the moon is silvery and bright, while sometimes it is now ever to be seen in the black sky. Now you see, one table is given on page number 107. Page number 107, you can see the table. उसमें आपको क्या करना है, look at the moon tonight and draw what it look like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. So today's date, after 1 week, after 15 days, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। आज की डेट लिख दो, टुडे इज 6 मार्च। आज 6 मार्च को रात को 12 बजे आपको मून की साइज जैसी होती है वैसी साइज ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर 15 दिन के बाद ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से कल की डेट 7 मार्च, कल भी आपको ऐसा करना है, परसों भी ऐसा करना है, और फिर आपको 1 वीक के बाद और 15 दिन के बाद मून की साइज में क्या आपको फर्क आता है, तो क्या फर्क आएगा, दोनों सब साइज सेम होगी कि अलग अलग होगी?
हेलेन? सर डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। हाँ, डेली मून कीप्स चेंजिंग इट्स साइज। हर रोज मून की साइज चेंज होती है। हाँ, कभी बड़ा होता है, फिर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पूरा राउंड हो जाता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है, डेली मून की साइज चेंज होती रहती है। हाँ बेटा। सर मंथ के एंड में है ना, मून बहुत बड़ा होता है मंथ के एंड में। यस 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 यस, जिसको पूनम कहते हैं, अमावस कहते हैं, पता है आपको सब? फाइंड आउट व्हेन इज द नेक्स्ट फुल मून। नेक्स्ट फुल मून कब है? एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे। और इस दिन मून कितने बजे मतलब राइज होगा? जैसे देखो, सन राइज एंड सन सेट होता है, इसी तरह से मून राइज एंड मून सेट भी होता है। मून भी मतलब राइज होता है और सेट होता है। तो आपको उसका टाइम लिखना है कि कौन से टाइम पे मून राइज हुआ और कौन से टाइम पे मून सेट हुआ। व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू मून। और मून के रिलेटेड फेस्टिवल कौन से है? ओके, पूनम के रिलेटेड, मतलब जिसको बोलते हैं पूनम, कोई कोई फेस्टिवल ऐसा होता है कि वो मून फुल मून पे ही होता है, न्यू मून पे होता है। ठीक है, अब मतलब ऐसा नोटिस करना कि मोस्टली जो फेस्टिवल होते हैं वो आइदर फुल मून पे होंगे या तो न्यू मून पे होंगे। At night, look at the sky carefully for 5 minutes. What do you see? Did you see anything moving in the sky? What do you think it could be? A star, a shooting star, or a satellite? Satellite are used for TV, telephones, and for weather report. Find out more about this. Look at the table and tell. Given below are the times at which the moon rises and sets in Delhi. नीचे जो टेबल दिया है बेटा, उसमें मून कितने बजे राइज होता है, कितने बजे सेट होता है, ये सब दिल्ली का है। देखो, डेट 28/10/2007 मून राइज हुआ था 1916। 1916 मतलब कितने बजे पता आपको? द टाइम इज गिवन इन 24 आवर्स, चेंज इनटू 12 आवर्स। 1916 मतलब कितने बजे? 13 मतलब 1 PM, 14 मतलब 2 PM, तो 19 मतलब कितने PM हुए बताओ फटाफट। बोथ ऑफ यू। 1916 means what time? 7:60 PM. बिल्कुल सही बात है, 7:16 PM। ओके, टाइम ऑफ मून सेट एंड 8:15 को क्या हुआ? सेट हो गया, मतलब रुक गया। इसी तरह से 29 डेट का दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। तो यू कैन सी द राइजिंग टाइम ऑफ मून एंड द सेटिंग टाइम ऑफ मून आर टोटली डिफरेंट। अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम हो रहा है, देखो, है ना। मून राइज का टाइम देखो बढ़ता जा रहा है ना, और सेट का टाइम भी उतना बढ़ता जाएगा। देखो, समझ में आ गया? 29 को 17 पे हो रहा है, 30 को 21, 22 को हो रहा है। On 28 October, the moon came out at dash clock. बताओ आंसर। 28 अक्टूबर को कितने बजे मून बाहर आया था? 7:60 को। 16 मिनट पास
7 o'clock लिखना है। क्या लिखना है? 60 मिनट पास्ट 7 o'clock, क्योंकि टाइम क्या है 1960 है ना बेटा, 1916, तो 19 मतलब कितने आवर हो गए? 7 आवर, और मिनट कितनी हुई? 16। तो आपको लिखना है द ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट 16 minutes past 7 o'clock. Is that clear? On 29 October the moon came out at 17 minutes past 8 o'clock. Is that clear? Turn the page. Turn the page. So इसी तरीके से क्वेश्चन दिए बेटा। Just a minute, just a minute. Okay, next question. On 29 October, there was a difference of hours and minutes. 8:17. क्या 8:17? हाँ टाइम ना, ओके। तो ये तीनों क्वेश्चन आप करके ट्राई करो, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है? और फिर मैं पीडीएफ भेजूँ, उसमें आप मैच कर लेना अपना आंसर कि आप सही हो कि गलत हो, ठीक है? द पोएम इज गिवन, देखो पोएम दी हुई है। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे ट्विंकल, टेल मी व्हाई, हाउ मेनी कैन यू सी, some seem near and some seem far, is there a name for every star, how many can you see, they shine so bright in the dark of night, why do they hide in the morning light, how many can you see, some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell, how many can you see. Poem is given. अब पोएम का मतलब ऐसा निकल रहा है कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग, स्टार ट्विंकलिंग होते हैं पता हमको स्काई में। Why do they twinkle? Tell me why. वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, उसका कारण बताओ। How many can you see? आप कितने देख सकते हो स्टार्स। Some seem near and some seem far. कोई कोई ऐसा लगता है नजीक दिख रहा है, कोई कोई बहुत दूर दिख रहा है। Is there a name for every star? क्या स्टार्स का कोई नेम होता है? Have you heard about pole star? Some stars have name, pole star. Okay, तो इसलिए क्या कहा? Is there a name for every star? क्या हर एक स्टार का नाम है? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? कि रात को चमकते हैं और जैसे सुबह होती है तो गायब क्यों हो जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं? Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. अब ये कहा है कि सम मतलब कोई कोई जो शाइनिंग स्टार्स है उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि आपने पोल स्टार के बारे में जाना होगा। बट एवरी स्टार हैज अ टेल टू टेल, मतलब एक हर एक स्टार के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई एक स्टोरी है। हाउ मेनी कैन यू सी? सो दिस इज द पोएम। ओके, ये पोएम इज रिटन बाय Anwar Islam. Now you can see an interesting photograph. Interesting photograph. ये photograph मून का है, sorry, yes मून का, sorry. देखो ये photograph किसका है? Let's see. A spaceship went to the moon. This photograph of Earth was clicked from the surface of the moon.
ये फोटोग्राफ जो दिया है सर दैट इज द बट फोटोग्राफ क्यों ऑफ अर्थ। और हाफ लग रहा है? क्या बेटा? हाफ क्यों लग रहा है अर्थ? अर्थ हाफ क्यों लग रहा है ऐसा? देखो, जैसे मून राइज होता है सेट होता है, जैसे मून राइज होता है सेट होता है, तो इसी तरीके से जब फोटोग्राफ लिया होगा तब हो सके कि अर्थ का राइज का और सेट का टाइम हो। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ मून का नहीं है, ये फोटोग्राफ अर्थ का है जो मून से लिया गया है। ठीक है, सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? आपको मून का सरफेस तो दिखता ही होगा, हाँ? Do you have some Yes. question after looking at the picture? Write down those questions and discuss them with the class. तो जैसे हेली ने भी एक क्वेश्चन किया कि वो हाफ क्यों दिख रहा है, तो हाफ दिखने का कारण ये है कि हो सके कि उसका सेट का टाइम हो गया हो, उसका सेट सेट मतलब डूबने का टाइम हो गया हो। ठीक है, आप देखते होंगे कि सन ड्यूरिंग द नून टाइम यू कैन सी कंप्लीट सन, पर जैसे जैसे इवनिंग मतलब रात होती है तो धीरे 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 वो सन कैसा होता है, छोटा छोटा होते होते वो पूरा कंप्लीटली गायब हो जाता है। तो इसी तरह से ये हुआ होगा ऑन द वीडियो बोथ ऑफ यू। Ellie, Ellie, where are you? Ellie, on the video. Page number 109. What we have learned. Start reading, beta. Once you start reading. Do your best. Do your best. Do your best thing and think will work out. When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon in 1969. Neil Armstrong was the first man to walk on moon. Like any other children, Sunita was also fascinated. Sunita said when she was young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day, she found that if she studied and prayed for it, she could join the space mission. Meet yourself, both of you. Once you meet yourself. And that is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. Sunita often gives her own example to tell the children, if you want something but you get something else, don't give up. Do not do your best and things will work out. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered,
I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. So about Sunita Williams, this paragraph is about Sunita's small biography is there. Okay, this we will discuss on the next class. Okay, bye beta. Bye beta. बाय सर। Bye. ये time हो गया।